Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. Here is your general science teacher Salma Boyo, and today we will start our third lecture of general science. Dear students, in your previous lectures you have learned about the energy, kinetic energy and potential energy. Also you have learned about the energy and work. So dear students, today we are going to start energy converters. It means how can we energy convert from one form to another form. So energy can be converted from one form to another form. Our topic is converting energy. So when work is done, ठीक है, energy is used and this energy does not disappear. It can be converted from one type to another. So look at this boy. Here is the energy stored in his muscles. As the ball moves upward, okay, ball is at the highest point, and now ball falls at the ground, and then ball hits the wall. It means chemical energy is stored in our muscles because energy in our muscles is due to food, and food possesses chemical energy. As a boy threw a ball, this energy is changed into kinetic energy, and when ball is at the highest point, then the energy is potential energy. As you have early discussed that you have in your previous lecture you have learned that the potential energy is energy due to height. So the energy due to height is called potential energy, and then the ball falls the ground. This energy is called kinetic energy because ball is moved. So kinetic energy is also called the energy in motions. So ball is in the motion. As ball hits the ground, this thermal energy is produced. So ये हमारी जो पूरी एनर्जी थी, ठीक है, ये चेंज हुई है, कन्वर्ट हुई है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्टिंग एनर्जी. So here are some energy converters. Energy can be transformed. So how energy can be transformed? Look at this dryer. This dryer contains electrical energy, and this electrical energy is turned into थर्मल एनर्जी. ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने जो है वो बालों को जब ड्राई करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस ड्रायर का स्विच जो है वो डालना पड़ता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में. ठीक है, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो थर्मल एनर्जी होती है, यानी कि उस वार्म की वजह से क्या होते हैं, हमारे बाल जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट दिस कार इंजन. This car engine contain chemical energy. So this chemical energy will change into thermal energy, and then car can move. So this thermal energy is changed into kinetic energy. As drives the car, a lot the thermal energy is lost in the surrounding air. Now look at this microphone. This microphone is contain electrical energy, and this microphone produce sound. So sound energy is changed into electrical energy. Sound energy from person's voice is converted into electrical energy. जैसे ही हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं तो एनर्जी क्या होती है, वो लाइट के ज़रिए क्या होती है, पास होती है, ट्रांसफ़र होती है. ओके, नाउ लुक एट दिस गैस स्टोव. In this gas stove, a chemical energy is converted into thermal energy. It means convert chemicals energy can be burned into the thermal energy which used for the cooking purpose. It means this heat is used for the cooking purpose. Now television. Let the example of television. This television is the this television क्या होता है, इसमें
इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यानी कि टीवी हम क्या करते हैं, कोई भी स्विच जो है वो जब हम लाइट जैसे ही आती है या लाइट के बिना हम क्या करते हैं किसी भी बैटरी या किसी भी दूसरी डिवाइस के ज़रिए हम जैसे ही इसका स्विच किसी इलेक्ट्रिकल जो है वो सॉकेट में डालते हैं तो टीवी क्या करती है, हमें साउंड भी देती है, साउंड एनर्जी भी देती है, हम टीवी पे इमेज भी देख सकते हैं यानी कि लाइट एनर्जी भी देख सकते हैं, और ये टीवी जो है वो गर्म भी हो जाती है यानी कि थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। इट मीन्स कि दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड, लाइट, हीट, थर्मल, and heat is produced which is lost to the surrounding air. Where heat is lost, heat can be lost into the surrounding air. So this was the last topic of your chapter. Dear students, here is another topic. What is sound energy? As you know that a sound is a form of energy. Okay, and how sound is produced? Sound is produced when something vibrate. कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एनर्जी इसमें जो ट्रांसफॉर्म होती है किसके ज़रिए, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो कंप्रेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन वगैरह वेव्स बनती हैं। ठीक है, यानी कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सोर्स होता है किसका, साउंड वेव्स का। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ को हिट किया, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब जब साउंड प्रोड्यूस होता है तब क्या बनते हैं, हमारे वाइब्रेशंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड द हीट एनर्जी। इट इज़ ड्यू टू द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इन हॉट ऑब्जेक्ट्स। व्हेन एन हॉट ऑब्जेक्ट कूल डाउन, its atom molecules slow down and lose energy into the surrounding air. Okay, take the example of this hot cup of tea. This contains a lots of heat energy, but when this hot cup is put into the cold air, it gradually loses its heat due to the environmental air. And here is another example called electrical energy. Electrical circuits वो सर्किट्स होते हैं जिनमें करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, व्हाट इज़ करंट, जब जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता है कि ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अब ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं बैटरी से इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। सच एज आप जो है वो किसी भी लाइट बल्ब वगैरह का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तभी जितनी भी वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, वो किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की बनी होती है। ठीक है, और उनके बाद ये जो प्लास्टिक होती है ये क्या करती है, ये जो है वो यानी कि करंट फ्लो को बचाती है, यानी कि इसमें अगर हम हाथ डालें तो हमें जो है वो करंट ना लगे। ठीक है, उसके बाद है रेडिएटेड एनर्जी। रेडिएटेड एनर्जी यानी कि एनर्जी जो है वो किसके ज़रिए मूव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो है वो मूव करती है। ठीक है, रेडिएटेड एनर्जी इज़ दैट एनर्जी विच कैन बी कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दीज वेव्स कैरी एनर्जी थ्रू स्पेस। ओके, ये क्या करते हैं, स्पेस के ज़रिए, यानी कि जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो स्पेस होता है उसके ज़रिए क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं। ठीक है, सन रेडिएट करता है जैसे लाइट को, तो ये ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एंटीना के ज़रिए, एरियल्स वगैरह के ज़रिए, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, यानी कि लाइट और जो रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या करते हैं, बोथ जो है वो ट्रैवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैरी एनर्जी, यानी कि इनके पास भी क्या होती है, एनर्जी होती है ये। ठीक है, सो आपने इस पूरे चैप्टर में एनर्जी को पढ़ा। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट द एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, transfer of energy, and also you have learned about the energy transmitters. There are so many energy transmitters. So your homework is you have to solve exercise of book page number 11. Thank you students. Have a good day.